to the subject. Okay. Any comfortable position. Hand in Drona Mudra. Back straight, neck straight, eyes closed. Visualize Om at eyebrow center. Exhale out completely. Inhale deeply. Rub your hand and warm to the eyes. Open your eyes. What is the problem? Hurry up. Now keep silent. Keep silent. Now today's topic. All we are talking about the immunity boosting, immunity booster. Even government of India, even various doctors or various other intellectual people are talking on this. What to do for boosting the immunity? Yes, everybody is correct. No problem. All are telling their information. All are correct. But gathering this information, and if we apply this information in our body, we should know what is the mechanism behind this. If I am talking about the yoga boosting the immunity, what is the technique? What is the mechanism behind this? What is the scientific reason behind this? That we should know. If again some people are talking about the diet, ये आला खाओ, नींबू पियो, ये करो, वो करो, और बहुत सारे हैं. But why? If I am taking all this drink or all this food and I am boosting my immunity, how it works after going inside your body? ये क्या करता है अंदर जाके कि वो अपनी immunity boost करता है? That we should know today. What is the mechanism behind this? Okay? इसका आपको आज आंसर लेना है. I am talking about the yoga. Yoga is boosting your immunity. How? वो कैसे करता है? कैसे वो अपने बॉडी को एक्ट करता है? कैसे वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है? अभी डाइट है, डाइट अपन ने लिया, डाइट के बाद में आप सब लोग बोलते हैं वेगान खाओ, ये खाओ. वो खाने के बाद हाउ इट विल इन्फ्लुएंस अवर इम्यूनिटी? कैसे इम्यूनिटी इन्फ्लुएंस करता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? वो आपको आज जानना है. और वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट मिलने के लिए. नहीं तो क्या है, वो सब अपन सुन लेंगे, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, अपन सुन लेंगे, और सुनने के बाद मैं ये करूं क्या, वो करूं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, उसमें ही अपना कंफ्यूजन हो जाएगा. डोंट बी कंफ्यूज. इसके लिए अपने को ये जानना जरूरी है कि ये खाने के बाद एक्चुअली मेरे शरीर के अंदर होता क्या है. यदि आपको ये होता क्या है, ये यदि आपको मालूम पड़ गया, तो आप यू कैन चूज योर फूड. आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि तुम ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, वैसा करो. आप अपनी तरफ से आप कोई भी फूड चूज कर सकते हैं. इफ यू नो द रीजन, वन सिंगल लाइन, इफ यू नो, आप बहुत सारी चीजें अपना डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी पर्पस. ओके, दिस इज द टुडे सब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट, अभी ये दो पार्ट में अपन करेंगे. योगिक इफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी and diet effect on the immunity. These are two parts. अपन दो पार्ट में अपन इसमें क्लासिफाई करेंगे. Okay, first we will take the diet. Why diet? Why diet is so important? Huh? Why diet is so important? First, no. In our body, in the body, there is a circulatory system. How many systems are inside our body, which are controlling our body system, complete body?
There are 11 system in our body. 11 system. You know 11 system. The first system everybody know is a digestive system. From mouth to the anus is one digestive system. Whatever food we are eating, we are digesting and eliminating through the excretory system. That is excretion through the urine or fecal matter. Okay. There are two systems. Okay. Digestive system, we are eating inside, and exhaling, eliminating, that is the excretory system, two system. The food we are circulating inside our body is a circulatory system. That is the blood which are circulating the blood. We are circulating the food inside our body through the blood. Okay, the three system. Nervous system. That nervous system, it is a controlling. Gruha Rajya Mantri, Gruha Mantri, it is a controlling. All the systems are controlling through the nerves. Through the nerves. Skeleton system. Skeleton system is giving the structure to our body. अपना हाइट कितना है, कितना ये है, रुंदी लंबाई कितनी होगी, क्या होगी, that decide your skeletal system. Skeleton means all your bone and all these joints together. That is your skeleton system. Only not skeleton system is sufficient. It is supported by a muscular or tissue. That is a muscular system. Okay. ये अभी आपको सब आपको ख्याल रहना है, कोई ज्यादा उसमें ये करने की जरूरत नहीं. आई विल टेल एवरीथिंग टू यू इन द पीपीटी. आपको डिटेल लेंगे अपन यहाँ आगे चल, लेकिन नो द व्हाट आर द सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम, उसके सामने कवरिंग हो गया मस्कुलर सिस्टम. देन देयर आर सम ग्लैंड्स इनसाइड आवर बॉडी. दे आर secreting some enzyme and hormones. That is called endocrine system. Okay. All these system are working together. ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है. सब सिस्टम इंडिपेंडेंट है, सब सिस्टम का कार्य इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबको कोऑर्डिनेशन से वो काम करते हैं. ओके. तो उसमें से अपन लेंगे आज फूड के लिए. व्हाई डाइट इज इंपॉर्टेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन ब्लड. Blood is the most important part in our circulatory system. Circulatory system, that our blood is carrying the food and providing this food energy almost all the cells and all the tissue part. Please remember. Okay. Please remember. Now, the basic question, the basic. What is the blood pH? What is the characteristic of this blood? Most important, number one characteristic is the pH of the blood. pH of the blood. What is the pH of the blood? It is 7.2 to 7.4. It is an ideal pH for our blood, for a normal person, for a healthy person. Remember this. For normal person, for healthy person, who have higher immunity, who have very more than average immunity, that person having the blood pH 7.2 to 7.4. That is slightly towards the alkalinity, not acidity. Okay, this remember. Now what is happening? Why our immunity is going down? Because due to wrong diet, we are disturbing this pH. Due to wrong diet, we are disturbing this pH by eating something wrong food. Which are the wrong food? Some junk food, कचौरी, समोसा, वड़ा, ये वो पूरा अपना नॉन वेज वगैरह 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 बहुत सारा है. That foods are depressing our pH value. ये जो food है, that is the acidic food, that is in acidic nature. There are two nature. There are two types of food. One is acidic nature food, and one is alkaline food. There are two food. This acidic food, if you take, that increase your pH to the acidic.
acidic side. Acidic food increase your blood pH to the acidic side. Remember, and alkaline food increase your pH to the alkaline side. Okay. See, if you take acidic food, that will change the blood pH in acidic side, then Okay, it okay, will okay, 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 okay. Okay. please silence. Please silence. Otherwise, you will not understand. It is very important. All of you. Yeah, See, continue. if you take any food which increase the pH, which decrease the pH, that is in acidic level, which will डिप्रेस योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी वो डिप्रेस हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी लेवल है कम डाउन हो जाएगी, समझो ये बात. और योर बॉडी इज मोर सब्सेप्टेबल टू अट्रैक्ट द ऑर्गेनिज्म, अट्रैक्ट द इंफेक्शन. और आपको छोड़ी सादा छूड़ा वो कुछ भी खांसी सर्दी खोखला ये सब अपने आप आते जाएगा, बिकॉज यू आर डिलिबरेटली डूइंग योर इम्यूनिटी डिप्रेस. आप अपने आप अपना खुद ही इसको आप ये ले रहे हैं, आपका इम्यूनिटी कम कर रहे हैं. इम्यूनिटी कैसे कम कर रहे हैं? बाय ईटिंग द एसिडिक फूड. आप एसिडिक फूड खाया तो आपकी ब्लड की पीएच ये 7.2 के नीचे आ जाएगी. जैसे ही वो 7.2 के नीचे आ गई, आपको फिर ये डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी. जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपको फिर ये डिसीजेज वगैरह जो भी है वो सब अपने आप में आ जाएगा आपके अंदर. नाउ सेकंड पार्ट इज द अल्कलाइन फूड. जैसे ही आप अल्कलाइन फूड खाओगे और आपको अल्कलाइन फूड की हैबिट आएगी, तब आपकी अल्कलिनिटी ऑफ द ब्लड 7.2 टू 7.4 के दरमियान वो मेंटेन रहेगी. दैट इज योर आइडियल पीएच ऑफ ब्लड. जैसे ही ये आइडियल पीएच ऑफ ब्लड ये मेंटेन रहेगी, योर हेल्थ विल बी मेंटेन because your immunity will be maintained. Now see, the immunity depends on your alkaline food. Don't eat more acidic food. हाँ, अभी आपको डिसाइड करना है आपको एसिडिक फूड खाना है कि अल्कलाइन फूड खाना है. ओके, अभी एसिडिक फूड कौन से है और अल्कलाइन फूड कौन से है, और बहुत सारे आप कहीं भी किधर भी जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ये सब चीजें. लेकिन क्यों खाना है? दिस इज द रीजन, because you have to maintain the pH of your blood. Okay. You have to maintain the pH of your blood 7.2 to 7.4. Okay, okay, okay. ये आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. ओके, दिस इज द फूड. और आप डिसाइड करो अभी आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है. हाँ, डाइट पार्ट हो गया. नाउ वी विल कम टू द अभी योगा पार्ट. But what is doing the yoga? How yoga is boosting your immunity? Okay. अभी अपने शरीर के अंदर आपको बोलता हूँ, अपने शरीर के अंदर we'll talk about two systems. One, circulatory system. Circulatory system. That circulatory system which carries the blood. जो अपने circulatory system है, वो सिस्टम अपना ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है, सब जगह सर्कुलेट करता है, और वो फूड भी लेके जाता है सब सेल्स को, टिश्यू को, सब. ओके, यू नो, यू गॉट दिस. वो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए आपके पास क्या है? हार्ट. जैसे हार्ट पंपिंग होते रहता है ना, द हार्ट इज कंटिन्यूअस पंपिंग, द ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी, कंटिन्यूअस. इट इज अ 24 hours process. Okay, 24 hours our blood is pumping, our heart is pumping and supplying blood to all the part. Okay, आप यदि बैठे हैं तो भी अपना हार्ट चालू है. ओके, आप रनिंग में है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा. ओके, लेकिन आपको सर्कुलेशन तो होना ही है, वो होता ही है.
that is voluntary process. Involuntary process, involuntary वो चलते रहते हैं. लेकिन अब immunity system is also a parallel system to the circulatory system. जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो होता रहता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक फ्लूइड अपना बॉडी में फ्लो होता है. समझ ले, ये इंपॉर्टेंट है मुद्दा. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे ही अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, and the same manner, one minute. हेलो प्रमोद. हाँ, यस, हाँ, कम्युनिकेशन होता है ना? होते. Okay, okay. Just like a circulatory system function is to carry the blood, to carry the food through the blood all over the cells. On the same manner, there is a lymphatic system. It is also called immunity system. It is also called immunity system. That fluid, that immunity fluid also circulated all over the body. There is a system. उसमें भी जैसे अपना ब्लड वेसल है, वैसे ही उसमें लिम्फेटिक वेसल है. थ्रू लिम्फेटिक वेसल, this lymphatic fluids are flowing, which carries white blood cells, and white blood cells are the fighting cells. These are fighting cells. सैनिक पेशी, we call in our Marathi सैनिक पेशी. फाइटर. जैसे ही कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आता है अंदर, और एनी फॉरेन बॉडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, दे इमीडिएटली गेट अलर्ट. और जैसे ही जहां पे आता है वहां पे वो सब लिम्फेटिक सिस्टम वहां चली जाती है. लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज दिस व्हाइट ब्लड सेल टुवर्ड्स दैट particular spot where the organism comes, where the foreign material comes, or it is a fighting, और वो उसको रोकती है आने से. यदि वो सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आपकी पावरफुल है और इफिशिएंट है, तो आपको कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है. डोंट थिंक अबाउट कोरोना. आज कोरोना है, कल और कोई आएगा, कल और कोई आके गया है. लेकिन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम यदि पावरफुल है और इफिशिएंट है और इफेक्टिव वे से काम कर रही है, और वो तुरंत वहां पे पहुंच जाती है यंत्रणा, तब वो तुरंत उसको खत्म कर देती है, जो भी फॉरेन बॉडी आती है तब. ओके, और वो है अपनी लिम्फेटिक सिस्टम. अभी देखो मजा क्या है इसमें, व्हाई इट इज डिफरेंट. अभी देखो जो जिम में जाते हैं बहुत सारी है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, भाला उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ अच्छा है. बट इम्यूनिटी इज डाउन. व्हाट इज द रीजन? ये सबसे बहुत महत्व इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसमें. सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी गुड, इफेक्टिवली सब है, ब्लड फ्लोइंग वेरी वेल, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कम है. व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे रीजन ये है, देयर आर टू सिस्टम, वन सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज द इम्यूनिटी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, बाय नेचर जो भगवान ने दिया हुआ है एक apparatus, that is your heart. The heart is pumping 24 hours and automatically,
and supplying the blood all over the body, whether you are sitting or whether you are walking, whether you are running, whether you are exercising. Okay. But in case of this lymphatic system, which is parallel to the circulatory system, there is no such apparatus. उसके लिए कोई हार्ट नहीं है उसको पंपिंग करने के लिए और ले जाने के लिए सब जगह। तो फिर वो कैसे जाता है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, समझो। ये मेरी बॉडी ठीक है, तबियत भी ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी कम है। जरा सा भी कोल्ड आ गया मेरे को सर्दी हो जाती है, जरा सा भी कुछ इन्फ्लुएंजा का कुछ आ गया मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है। वाई? मैं तो तगड़ा हूं, मेरा तो हेल्थ बहुत अच्छा है, मस्कुलर हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन नहीं होता है। वाई? क्योंकि आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वो सोई हुई है, उसको वो काम नहीं कर रही है। और आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो वही बर्फ तुरंत वहां इफेक्टिवली वहां पहुंच जाता है। अभी ये लिम्फेटिक सिस्टम है इधर, दैट इज वेरी स्लोली मूविंग, और उसकी मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज योर मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। और मूवमेंट ऑफ योर बॉडी मीन्स नॉट ओनली द जॉइंट्स में नहीं जाएगा, दैट इज योर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल। जैसे मैं इधर दबाऊंगा, it will move further. When I will give pressure to this is, there are some spot all over the body of this lymphatic system. वही स्पॉट पे आपको कुछ प्रेशर देना है, रिलैक्स करना है, प्रेशर देना है, रिलैक्स करना है। by doing some various type of asanas, by doing some various types of posture. This posture is giving various organ to various, giving the pressure to the various organ, various system, then that lymphatic system will get accelerated. कोई आप जिम में जाके कोई व्यायाम कर रहे हो, पर इधर क्या आपको मिलेगी? थोड़ा सा। व्हाट अबाउट योर अदर पार्ट? लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का ऐसा नहीं है। ये जो अपना हार्ट है, हार्ट इज सप्लाइंग ऑल ओवर द बॉडी, वो तो जाना ही है ब्लड को, लेकिन लिम्फेटिक का ऐसा नहीं है। जस्ट रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस। और योगा में क्या होता है, एज कंपेयर टू योर जिम एक्सरसाइज, आप तो कर लेते हैं, लेकिन इधर आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाता है। ओके, बट व्हाट अबाउट योर लिम्फेटिक नोड्स इन आवर चेस्ट, हियर, स्प्लीन, वो सब पूरे शरीर में फैली हुई है ये लिम्फेटिक सिस्टम, और वो पूरा स्टैग्नेंट है। जब तक उसको आप खुद होके उसको मूवमेंट के लिए चालना नहीं दोगे, तब तक वो मूव नहीं होगी। और आप बैठे रहोगे, आप करोगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट कम रहेगी, तो आपकी इम्यूनिटी नीचे आना मीन्स आना ही है। एंड टुडे इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ये जो आ रहा है इतना, immunity level, average immunity level of the person is coming down due to this सब एसिडिक फूड का फैलाव ज्यादा। एसिडिक फूड, बस जो अपने जीभ को जो 2.5 इंच को जो अच्छा लगता है वो खाना है, बस हो गया। लेकिन अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है, गॉड नोज। वो अपने गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ देते। लेकिन वो करता क्या है, पूरा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बर्बाद कर देता है। पूरा आपका ब्लड की एसिडिटी, ब्लड की पीएच पूरी आपको एसिडिटी लेवल पे लेके जाता है, और जैसे ही वो एसिडिटी लेवल पे गई, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है, अरे मेरे को तो ये सर्दी होगा, ये होगा, ये कर दिया, और आप जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, और रीजन कुछ और है, और खाते कुछ और है, उसके साइड इफेक्ट और कुछ और है। Remember this first. What is the basics? Important is try to eat fresh food or alkaline food. और मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि आप एसिडिक फूड खाना ही नहीं, आप खाओ, लेकिन उसमें लिमिट पाड़ो।
कुछ तो भी इसमें लिमिट रखो, डोंट क्रॉस द लिमिट, कि जैसे ही, और वो डिसाइड करना है आपको, आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, सबको पता लग जाएगा. नाउ वी विल अगेन कम टू द योगा पार्ट. अभी योगा, व्हाट नाउ योगा इज डूइंग, वी आर डूइंग द पोस्चर. नाउ आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस. वी आर डूइंग वन आसन, दैट इज वज्रासन. अभी वज्रासन में मैं आ गया. व्हाट इज हैपनिंग इन वज्रासन? There are the lymph node on this part and lymphatic vessel of this part that will get pressure on this, and turn it will come to upside. Okay, see, blood will there, but that lymphatic fluid which is responsible for your immunity, that we have to move all over the body. जो लिम्फेटिक वेसल्स है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो अपने शरीर में आपने को पूरा घुमाना है. क्यों घुमाना है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उससे बढ़ने वाली है, इसके लिए घुमाना है. और वो घुमाने के लिए आपको अलग अलग पोस्चर करके ही वो पूरे शरीर में घूमेगी. जैसे मैंने वज्रासन कर लिया, वज्रासन करने के बाद मेरा वो फ्लूइड वो इधर ऊपर आएगा, फिर मैं जाऊंगा योग मुद्रा के लिए. जैसे ही मैं योग मुद्रा में जाऊंगा, यहां का जो फ्लूइड है मेरा ऊपर जाएगा, पूरा सर तक जाएगा. Hence, I am moving that fluid from bottom to the up, from bottom to the up by 2 or 3 postures. Again I will come up, again that fluid will come down, and I will release the asan, it will again come back. Like this, such type of posture, we are moving this lymphatic system. We are moving this lymphatic fluid through the lymphatic vessel all over the body. Please remember, because this is the only solution to circulate this lymphatic plasma or white blood cells all over the body. Do the asanas, and hence there is a various postures in yoga. There is various posture in yoga. Only this reason to move this lymphatic fluid all over the body. पूरे शरीर में आपको उसको वेगला अलग अलग टाइप के आसन करके आपको उसको घुमाना है. This is one reason. ये रीजन है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. और दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म है. ये आसन करने से क्यों इम्यूनिटी बढ़ती है? क्योंकि वो पूरा अपना लिम्फेटिक सिस्टम पूरा इफेक्टिव करता है और पूरे शरीर भर उसको घुमाता है. क्योंकि उसके लिए कोई आइडियल एटोमाइजेशन नहीं है. वो जो भी है, जो भी घुमाने का जो भी एपरेटस है, वो आपका खुद है. जितना आप हलचल करोगे, जितना उसको प्रेशर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उतना वो कार्यरत रहेगा. नहीं तो वो ढीम करके बैठ जाएगा. फिर आप आओ, फिर दवा खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी. दूसरा फॉरेन मटेरियल आएगा और आपके ऊपर राज करेगा. नाउ यू गॉट दिस पॉइंट? हेलो? Yes. Huh? Yes. It is clear? Why? It is clear why we should the asana? Yeah. हाँ? हो. हाँ. रीजन, हाँ, अभी आपको रीजन अभी मालूम पड़ गया. व्हाट इज द मैकेनिज्म. नाउ अभी करते हैं. नाउ वी विल सी द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दिस ईच आसन. अभी कैसे करना है ये तो हो गया, आपको तो सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी अपन कोई भी आसन करते हैं, देख लीजिए. Contraction and relaxation is the main aim. Contraction and relaxation is the aim. Not going to the final posture or ideal posture. Okay. Yes, I will show you again.
I am sitting on the Vajrasana. I am sitting on the Vajrasana. Okay. I am going to do the Yoga Mudra. Yoga Mudra कर रहा. I am reaching this level only. I am reaching this one. Some people are going touching their forehead. Okay, no problem. Touching their forehead. Somebody are like this here. क्योंकि ये उसका पार्ट है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. आपका टच होता है या इधर तक आता है या यहाँ तक रहता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आपका ये क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपका एम है वहां पे प्रेशर देना. I am giving, my aim is this, my focus is what? My focus is to give the pressure on the abdomen, this side. I am focusing on this side in the yoga mudra. Why? Because I am moving this lymph vessel, this lymph fluid outside, this blood outside. जहां भी इतना मेरे इधर जो भी fluid है, whether it is a blood, whether it is a white blood cell, whether it is a lymph fluid or any other fluid, मेरे को उससे रिप्लेस करना है. और ये रिप्लेस कब होगा? जब मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, जैसे ही वो रिप्लेस हो जाए. और रिप्लेस तो होना ही है सबका. मैं इधर भी जाऊंगा तो भी मेरा रिप्लेस होना है, मैं पूरा इधर भी जाऊंगा तो भी रिप्लेस होना है, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी में फर्क रहेगा. जो पूरा जाएगा उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो यहां तक जाएगा उसको भी मिलने वाला है. ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलने वाला, वो भी वहां तक पूरा ये जाने वाला है. और कुछ दिनों के बाद तो उसका फोरहेड भी उसका टच होने लग जाएगा आफ्टर प्रैक्टिस. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड. अपना एम क्या है, दिस इज द एम. ओके, अभी दूसरे अपन ऑप्शन करते हैं. नाउ दिस इज द सिटिंग पोस्चर फॉर दिस एब्डोमेन. अभी ये शोल्डर के लिए, दिस इज द शोल्डर. ओके, शोल्डर है, ये पूरी अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा है. उसके लिए क्या करते हैं? we'll do the one आसन, सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा, फॉर दिस कंप्लीट पोस्चर. is the complete shoulder. This Sarvangasana. Now this type of asana, see, is Viparit Karni Mudra, again the same. Then Sarvangasana, again the same. It is complete in Katkun. Katkun में आएगा पूरा सर्वांगासन. हलासन, that we are going back side. जो अपने पाव है अपन बैक साइड में टच कर देते हैं. एंड इट इज अ कंप्लीट प्रेशर ऑन दिस एरिया. इसमें कंप्लीट प्रेशर. इसमें ब्लड के साथ आपका लिम्फिक फ्लूइड भी तो आना ही है. ऐसा नहीं है कि वो ब्लड आएगा और लिम्फ फ्लूइड उधर ही रह जाएगा, नहीं. उसके साथ साथ सर्कुलेट के साथ में उसको चलना ही है. लेकिन वो लिम्फेटिक फ्लूइड चलाने के लिए आपके एफर्ट्स की जरूरत है. वो खुद नहीं जाएगा, ये समझो. वो खुद नहीं जाएगा ब्लड के साथ. आप कितने भी रनिंग कर लोगे, ये कर लोगे, आपका ब्लड फ्लो पूरा चला जाएगा, क्योंकि आपके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे. हार्ट बीट बढ़ने के बाद आपका पंपिंग बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो पूरा सर से नीचे तक पूरा हो आ जाएगा. लेकिन लिम्फेटिक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई एपरेटस नहीं है. दैट इज द ओनली एपरेटस ऑफ दिस आसना. नो, ओनली आसना. यू हैव टू डू आसना. आसन करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और लिम्फेटिक फ्लू इफेक्टिवली आप घुमा सकते हैं. और कैसे? ऑन ईच एंड एवरी आसन. ओके, नहीं अपन देखेंगे अभी. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आसनास. ओके, अभी अपन आसन से ही शुरू करेंगे और आसन से मैं बताता हूं आपको कैसे 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 जाता है. और यू आल्सो एक्सपीरियंस दिस. अभी आसन क्यों करना है और इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होना है, आपको समझ में आ गया सबको? नाउ कम टू द विश्रांति अवस्था. विश्रांति अवस्था में नाउ अभी यही अभी ख्याल रखना है. आई एम बूस्टिंग माय इम्यूनिटी.
आई एम बूस्टिंग माय लिम्फेटिक सिस्टम। यही अपना भी सोचना है कोई भी आसन करते टाइम, और वो कहाँ पे मेरे को कहा करना है वो भी आपको फोकस करना है। नाउ क्लोज योर बोथ द लेग्स, हैंड बिसाइड्स योर बॉडी। आई एम टेकिंग वज्रासन। करो सबके सब, मैं साथ में आपको बोलता हूँ। नाउ सी, नाउ माय फ्लूइड विल कम अप बिकॉज आई हैव लॉक दिस। मैंने पैर से उसको लॉक कर दिया। नाउ ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड इधर ही रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू द योग मुद्रा। लेफ्ट हैंड पीछे गया, राइट हैंड से मैंने पकड़ लिया, एक श्वास भर लिया और श्वास छोड़ते छोड़ते आगे जा रहा हूं। नाउ सी, देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन माय एब्डोमेन। मेरे पेट के ऊपर पूरा प्रेशर है। जो मैंने पहले लॉक किया, पैर मैंने लॉक किया, तब क्या हुआ, ब्लड मेरा यहाँ पे गैदर हो गया, पेट में गैदर हो गया ब्लड और लिम्फेटिक फ्लूइड। जैसे ही वहां पे गैदर हो गया, वापस मैंने योग मुद्रा करके उसको प्रेशराइज करके वापस उसको मैंने पिछली ओर खींच लिया। देखिए, लॉक किया, लॉक होने के बाद पूरा पेट में जमा हो गया, और अगेन मैंने प्रेशर दिए कि पेट में प्रेशर दिया, और वो पूरा इधर मेरे सब पूरा बैकेज के पास में वो सब निकल गया। It spread all over the body. Please try to understand this. और जितना आप रुकोगे उतना उधर रुका रहेगा। जैसे ही आई रिलीज दिस आसन, आई रिलीज दिस योग मुद्रा, आई विल कम अप। जो बाहर गया था, यहां से जो रिप्लेस होके बाहर गया था, वो वापस उधर आ जाएगा। इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड। जितनी ये अब इफेक्टिवली ये रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड होगी, जितना ये रिप्लेसमेंट होगा, उतना आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसी हिसाब से बढ़ेगी, उसी रेट से बढ़ेगी। रिमेंबर दिस, क्योंकि वो आप खुद एपरेटस है इसका, उसको मूवमेंट करने का, उसको बढ़ाने का। ओके, अभी करेंगे दूसरा। नाउ फ्रॉम द फ्रंट साइड, दोनों हाथों की मुट्ठियां। अभी देखो, अभी मेरा प्रेशर सिर्फ एब्डोमेन के सुपरफिशियल था। अभी मुझे ये प्रेशर पूरा किडनी तक लेके जाना है। नाउ आई हैव दैट प्रेशर शुड रीच टू द किडनी के पास लेके जाना था। मैं क्या करूंगा, फिर आगे क्या करूंगा, दोनों मुठिया नेवल रीजन के पास मैंने रख दिया, और पूरा वहां पे मैंने प्रेशर दिया, उधर से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इज गोइंग डायरेक्टली टू द किडनी। मैंने और थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया, उसका सेंटर पॉइंट है, डायरेक्ट प्रेशर इज गोइंग टू द किडनी। हरिओम, रिलैक्स। और जब आप वो आसन, कोई भी आसन छोड़ते हो, और जो फ्लूइड बाहर जाता है वापस अंदर आता है, वापस जगह पे आता है, तब आपको कुछ अलग ही महसूस होता है। उससे आपको पता चलता है, उसके इफेक्ट का क्या है। ओके, किडनी को प्रेशर है, इससे ओनली नॉट यू आर इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी, लेकिन आप यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अभी देखो, योग मुद्रा में एब्डोमेन में है तुम्हारे, पहले अभी नीचे से लेंगे आपको
प्रोस्टेट के ऊपर सेमिनल वेसिकल, उसके ऊपर है, उसके पीछे है किडनी, लहान आतड़, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है आतड़े है वो है, पूरा स्टमक है, इधर लिवर है, और उसके आगे ऊपर पैंक्रियास है। इतने सब ऑर्गन आपके पेट में है। यदि ये पेट के सब ऑर्गन के लिए यदि लिम्फेटिक फ्लूइड कंटिन्यूअसली मिलने लग जाएगा, इट इज अ टॉनिक फॉर ऑल द ऑर्गन। लिम्फेटिक फ्लूइड इज अ टॉनिक फॉर ऑल द ऑर्गन, रिमेंबर दिस। ये यदि सब ऑर्गन को यदि इंटरनली मिल रहा है तो आपकी इम्यूनिटी तो आपको इतनी ट्रिमेंडस बढ़ जाएगी कि आपको क्या कोरोना का बाप भी आए तो आपको कुछ नहीं होने, because you are providing the internal tonic, जो अपने आप नेचर, इट इज अ नेचुरल टॉनिक। लेकिन वो कहाँ पड़ा है? वो इधर इधर पड़ा है। उसको वहां से पूरा ऑर्गन तक लेके जाना है आपको, और लेके जाने की मेथड क्या है? ये आसन, वेरियस पोस्चर, ये लेके जाने की उसका एपरेटस है। समझ गए? तो लोग बोले आसन क्या, बोलते आपण सर्व्हिसिंग म्हणतो ना, सर्व्हिसिंग किंवा ओव्हरऑइलिंग, वी आर डुइंग द ओव्हरऑइलिंग ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओव्हरऑइलिंग करता आपण वेगवेगळे ऑइल वापरतो, इधर वी आर यूजिंग दिस लिम्फेटिक फ्लूइड, ओके, एंड ब्लड, इसके लिए पूरा धो डालते हैं अंदर से। हाँ, इज आल्सो ए डिटॉक्स, लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो डिटॉक्स, रिमूविंग ऑल द टॉक्सिन। वो टॉक्सिन जमा करके ब्लड में देते हैं और ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है और किडनी से अपन एक्सक्रीट करते हैं। दिस इज वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस डिटॉक्स जो है, डिटॉक्स एक्शन वो भी अपना बढ़ जाता है। इसके लिए रिमूवल ऑफ गैसेस, टॉक्सिन, तो तुरंत वो रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और जैसे वो पूरा एक्सक्रीट हो जाता है ऐसे ही अपनी इम्यूनिटी अगेन डिस्टर्ब और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ओके, नाउ वी विल डू मांदरासन। अभी देखिए, मुद्रा इज फॉर प्रेशर, और कुछ जो आसन है दैट इज फॉर ओनली, दैट इज फॉर आवर स्केलेटल मसल, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, some आसन। Now this आसन is for skeleton system and muscular system. It is a मांद्रासन। दोनों पैर में खड़े हो गए, दोनों इसमें अंतर लिया, दोनों हाथों का अंतर ये ले दिया, सीधा कर लिया। ओके, नाउ मेरा मेरुदंड, बैक एंड नेक इन वन लाइन। नाउ बैक विल गो डाउन, बैक मेरी नीचे जाएगी और नेक ऊपर आएगी। देखिए, इसमें अपना मेरा मेरुदंड, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो अपने वर्टिब्रल कॉलम है, कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम, 33 वर्टिब्रल कॉलम, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड इज मूविंग। उसके लिए वापस सीधा, अगेन गो अप और अनटी छातीला। हरिओम, come down again in the Vajrasana. Now see what is happening in this asana. This is a complete, there are 33 vertebra in our body, 33 vertebra in our मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, इधर से जो पहला अपन त्यांना मनके म्हणतो, मनका, पहला मनका और आखिरी मनका, इट इज अ स्पाइन, और ये फर्स्ट वर्टिब्रा, ये टोटल है 33 वर्टिब्रा। तो एक के ऊपर एक ऐसे है,
और उसके बीच में कुशन है। इसके लिए कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी अपन एक्सरसाइज करते हैं पूरा मस्कुलर, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही बैठे। इससे क्या होता है, दे बिकम जाम, ये जाम हो जाते हैं। और इसके अंदर से अपना स्पाइनल कॉर्ड जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मीन जो अपना मेंदु है, ब्रेन, ब्रेन का शक्ति, ब्रेन का शक्ति ये अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा होके नीचे जाता है, और वहां से ये वर्टिब्रा से पूरे ब्रांचेस निकलते हैं, नर्व्स के ब्रांचेस निकलते हैं और बाकी शरीर में जाते हैं। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रेन, ब्रेन से जो शक्ति है वो इससे नीचे आती है, और यहाँ से पूरे ब्रांचेस निकल के पूरे शरीर में पूरा ही जाते हैं। उसके साथ में ब्लड वेसल भी है। ओके, अभी देखो, ये ऊपर का है सर्वाइकल वर्टिब्रा, नीचे का है थोरेसिक वर्टिब्रा, इसके नीचे है लंबर वर्टिब्रा, और उसके नीचे कॉक्सियल, और वो स्पाइन, ऐसे पूरे 33 वर्टिब्रा है। उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में ये अपना वर्टिब्रा, वो सब जाम है, पूरा स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड भी पूरा जाम है, और जो नर्व आ रहे हैं वो भी सब जाम है, वो ब्लड वेसल भी पूरे जाम है। देखो, उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है क्या? ट्रैफिक तो जाम हो जाएगा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से जाएगा ब्रेन की तरफ, ना कोई आपके जो सेंसेशन है, जो रिस्पांस है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए आपका कॉन्शियसनेस उससे कम हो जाता है। ये कॉन्शियसनेस क्यों कम होता है? ड्यू टू दिस जामिंग। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक है, उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं, इसके लिए पूरा जाम हो गया, नर्व फाइबर जाम हो गया, ब्लड वेसल जाम हो गया, इसके लिए आपका कॉन्शियसनेस लेवल डाउन हो गया। फिर उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ फिर बाद में 1 घंटे 1-2 मिनट के बाद समझ में आता है, उसको अपन लेट करंट बोलते हैं। इसके लिए यदि आपका यदि ये स्मूथ है, यदि ये स्मूथ है, स्पाइनल कॉर्ड स्मूथ है, उसके नर्व फाइबर वगैरह सब स्मूथ है और फ्लेक्सिबल है, और सही तरह से पूरा उसका ट्रांसपोर्टेशन चालू है, तब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एकदम ऊंची आएगी, ऊंची रहेगी। और इसके लिए वही उसको मूवमेंट के लिए वही सब अपना मेरुदंड, अपना वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम स्पाइन टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा रिलैक्स करने के लिए अपना ये मांजरासन है। देखो, आप इससे आपको सब समझो, इसमें से कितने रोग निकल जाएंगे। देखो, जैसे ही अपना ये स्पाइनल कॉर्ड इजी हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब मोटर सेंसर है, वो यदि आपके इजी होने लग जाएंगे, कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अगणित, एक दो नहीं, बहुत सारे। बैकएक भी ठीक हो जाएगा, इधर कहीं आपको कोई पैरालिसिस है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई इधर कोई अपना ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई जब किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। कितने अगणित जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसा कोई मैं एक प्रॉब्लम नहीं क्लेम कर सकता हूँ कि ऐसे कि ये नहीं हो, अरे बाबा उसके जो इतने भी रिलेटेड है प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस ये जामिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो सब ठीक होने वाले हैं। सो सिंपल है, तो त्रैरासिक है, लॉजिक है। इसके लिए ये अपने को मार्जरासन करना है। ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और क्या है अपने पास? सेकंड, मेरुदंड वक्रासन, जो अपन पहले ही करते हैं। दोनों पैर में साथ लेते हैं, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखते हैं, एक पाव लेफ्ट थाई को लगाते हैं ऊपर जाके फिर नीचे। द बेस्ट फॉर दिस। अपन करते हैं ये भी। ओके,
What is happening in this? इसमें वर्टिब्रा स्ट्रेच होता है और मूवमेंट भी होता है, स्ट्रेच होता है और मूवमेंट भी होता है, दोनों। इसके लिए वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा ढीला हो जाता है, पूरा ट्रैफिक जो जामिंग है वो सब निकल जाता है, और आजू बाजू के नर्व्स है, ब्लड वेसल है, वो भी मोकले हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ दुखना रहेगा वो सब निकल जाएगा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ओके, दिस इज द केस। ये अलग अलग पोस्चर है, और इसमें भी कौन से पोस्चर है? व्हाट इज दिस पोस्चर आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। वो कैसे है, ये आसन कैसे डिवाइड किए, कैसे क्लासिफाई किया, और वो क्लासिफाई करने के बाद उसके अलग अलग इफेक्ट भी है। जैसे आप अभी आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, अब थोड़ा सा आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का थोड़ा सा ये आ गया, आइडिया आ गया। अभी आप खुद सोचोगे कि इससे मेरे को क्या हुआ। देयर आर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, जैसे मैं पूरा आगे जाता हूं, दैट इज फॉरवर्ड बेंडिंग। खड़ा रह के जाता हूं, इट इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग। इट इज फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या होता है, पूरी मेरी पीठ है, ये सब मसल, दैट इज स्ट्रेच, दैट इज स्ट्रेच, एंड ये है दैट इज द प्रेशर। पूरा इधर प्रेशर है, पीछे स्ट्रेच है। ओके, पूरा प्रेशर। नाउ कंटेम्पलेटरी, अभी मैं उसे उल्टा करूंगा, पीछे जाऊंगा, अभी आगे स्ट्रेच आ गया, पीछे बैक में प्रेशर आ गया। ओके, दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। दिस इज स्ट्रेच एंड प्रेशर। ओके, स्ट्रेच एंड प्रेशर दोनों उधर से, एक साइड में प्रेशर है, एक साइड में स्ट्रेच है। नाउ सेकंड टाइप आसन, जैसे आप आसन करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। नाउ सेकंड आसन, साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग ऐसा, साइड बेंडिंग, यानी देखिए ये मेरा इधर से स्ट्रेच हो गया, बैक स्ट्रेच एंड प्रेशर आ गया, इधर अभी इधर इधर भी होना चाहिए ना, ये पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, ये भी पार्ट मिस नहीं होना है, इसके लिए साइड बेंडिंग। ये देखो इधर पूरा स्ट्रेच आ गया और इधर प्रेशर, कंप्लीट प्रेशर। जैसे ये मेरा इधर स्ट्रेच रिलीज हो जाएगा, नाउ दिस साइड स्ट्रेच, दिस साइड प्रेशर। और प्रेशर का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही शुरू में बोल दिया, आई हैव टोल्ड, जैसे उधर प्रेशर आता है उधर का सब लिम्फेटिक एंड ब्लड बाहर चला जाता है, जैसे अपन रिलीज करते हैं वहां पे अंदर आ जाता है। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट आसन, ट्विस्टिंग आसन। ट्विस्टिंग, इसमें कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्विस्टिंग में आएगा अपना अर्धमच्छिंद्रासन, ट्विस्टिंग। ये देखिए उसमें सब ये आएगा, उसमें ट्विस्टिंग भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, स्ट्रेचिंग भी रहेगा, सब रहेगा। एक हाथ का मैंने ब्रैकेट कर लिया, इसको इधर खींच लिया, और मैं पूरा यहां से आगे ट्विस्ट कर लिया, दैट इज ट्विस्टिंग एट ए टाइम। Sir, At can you a time show there is a me? pressure on abdomen, twisting on my neck, twisting on my waist, complete twisting, holding the legs. See,
ये साइड से कर लिया, ये साइड से प्रेशर आ गया पूरे पेट में, ट्विस्टिंग ये साइड में आ गया नेक में। अभी मैं दूसरे पैर से करूंगा तो वो फिर अपोजिट साइड में जाएगा। पहले ये साइड में था ट्विस्टिंग, अभी ये साइड में, इट्स कंप्लीट बैलेंसिंग। ओके, दिस आसन इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। अभी आप जैसे दूसरे अदर आसन विल यू आर डूइंग, आपको अपने आप समझ में आएगा whether is a twisting, whether it is a balancing, whether it is a side bending, or whether it is a forward bending or back bending. Okay, now the other category is a balancing asan. See, balancing asan, this is not only balancing the asan, this asan are balancing your mind also, the relation between your mind and body. See, if both are alert and both are conscious, then you can maintain your balance, otherwise no. आपका आपका माइंड इस पे नहीं है, अपने पास नहीं है, और आपका चित्त इधर उधर घूम रहा है, आपका बैलेंस नहीं आएगा। आप कितने भी स्ट्रांग रहो और आप कितने भी वीक रहो बॉडी से, कितने भी वीक रहो, लेकिन वो माइंड आपका अपने पास है, आपका चित्त अपने पास है, तब आप अपना बैलेंस, बॉडी का पूरा बैलेंस आप कर सकते हैं, पूरा बॉडी का बैलेंस कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन के लिए एक सादी ट्रिक है, हाउ यू कैन स्टेबलाइज, हाउ यू कैन स्टेडी एंड स्टेबल योर माइंड। फर्स्ट, एक फोकस करिए एक पॉइंट के ऊपर, जैसे आप वो पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे, आपका बॉडी अपने आप बैलेंसिंग में आए। ऐसे आप करेंगे तो बैलेंसिंग आसन, वन मोर बैलेंसिंग। इधर थोड़ी देर अपने ताड़ासन, दोनों एडीए पे अपने को खड़ा रहना है। आई विल फोकस, दोनों हाथ मेरे ऊपर जाएंगे अलॉन्ग विद दोनों एडिया। आई विल फोकस वन पॉइंट। जहां तक अपना फोकस है मेंटेन है, तब तक आप बैलेंस कर सकते हैं। हरिओम विचार, जहां तक आपका फोकस है तब तक आप कर सकते हैं। आपका फोकस हट गया, आपका बैलेंसिंग गया। दिस इज अ बैलेंसिंग आसन। वन मोर बैलेंसिंग आसन, दैट इज अ वृक्षासन। इसमें बहुत सारा माइंड बैलेंस नहीं रहेगा तो आप चले जाएंगे। हरिओम। दूसरी तरफ से फोकस करो, एक पॉइंट के ऊपर आपने फोकस कर लिया, यू कैन कीप योर बैलेंस। जैसे ही आपका फोकस हट गया, योर माइंड बिकम डिस्टर्ब, आपका बैलेंस चला जाए। आप ये आसन करो या आप कोई भी गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन हो, फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किसके ऊपर फोकस करना है ये आपको ध्यान देना है। अभी मैंने अलग अलग आसन बताए, अलग अलग आसन में आपका फोकस हर डिफरेंट लेवल पे जाएगा, डिफरेंट पार्ट पे जाएगा, and that depends on your pressure, where you are getting the pressure, where you are getting the stress,
स्ट्रेन, कहीं पे आपको तान आ रहा है, कहीं पे आपके ऊपर दाब आ रहा है, उसको अपन को फोकस करना है। और आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्ट है, जो पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे फोकस, जो जहाँ पे आपको प्रेशर आ रहा है, जहाँ पे आपका दाब है, जहाँ पे आपको स्ट्रेन है, उसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी या उसका वो लिम्फेटिक सिस्टम, वो एरिया का वो बढ़ने वाला। ऐसा अलग अलग आसन करके आप पूरा बॉडी आपको कवर करना, और पूरा बॉडी कवर करने के लिए आपके पास है ये 4 प्रकार के आसन: फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड बैलेंस एंड रिलैक्सेशन। आखिरी का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मीन्स अपना शवासन और मकरासन, that is two asan, that is relaxation, relaxative asan. And this is meditative posture. Again, this is a meditative posture. इसमें meditative posture है 4 टाइप: सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और वज्रासन। यही आसन में आपकी बॉडी अपने आप विदाउट डूइंग एनीथिंग ये हीमोस्टैटिस बैलेंस में आ जाती है, माइंड एकदम स्टेबलाइज हो जाता है, सिर्फ अपना चित्त इधर उधर घूमता है। और कुछ टाइम के बाद यदि आप अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लाओगे तो वो माइंड भी अपने ठिकाने पे आ जाए। ये ट्रिक है सब। दिस इज मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन में पूरी बॉडी अपनी समस्थिति में आ जाएगी, पूरी आपकी प्राण देह धारणा हो जाएगी। उसके बाद में तो भी अपना जो माइंड है वो इधर उधर भटकता है, चित्त बोलते हैं उसको, चित्त। मैं इधर बैठा हूं लेकिन मेरा चित्त कोई और है, घूम रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको ला के मेरे को पकड़ना है और इधर पकड़ के रखना है, सो दैट आई कैन थिंक वेरी वेल, मैं स्टडी कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपको चित्त इधर और घूम रहा है, आप बैठ जाइए, अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, लगे तो गिनिए उसको। जैसे आप गिनना शुरू कर दोगे, आपका चित्त उधर आ जाएगा और अपना माइंड बॉडी के साथ जुड़ जाएगा, और आप अच्छी तरह से थिंकिंग कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। और जो स्टडी आप करोगे वो कभी भूलोगे नहीं, इतना गारंटी। नहीं तो क्या होता है, लोग अपना, बच्चे लोग स्टूडेंट बहुत सारा स्टडी करते हैं, एग्जाम में जाते हैं और वहां पे भूल जाते हैं। ये चीज नहीं होती है। इसके लिए कभी भी एक पास स्टडी के पहले 2 मिनट 4 मिनट ऐसा बैठ जाइए, सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, माइंड पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा, और उसके बाद में अपना स्टडी चालू करो। और साथ साथ में हो सके तो त्राटक भी कर लो, कंसंट्रेटिंग ऑन होम और एनी ऑब्जेक्ट और सम फ्यू टाइम्स, क्योंकि उससे भी अपना माइंड तुरंत स्टेडी एंड स्टेबल हो जाता है। आंखों से, आंख और नोज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंखें और नोज दोनों, इससे माइंड तुरंत स्टेबल होता है। स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ, या सब अलर्ट है? यस यस, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो पूछो, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। there are two questions. हाँ, First question is immunity system is the most important system? ऐकू येत नहीं है। The immunity system is the most important system? You said there are 11 systems in the body. हाँ, And out of that, you said immunity system, you explained immunity. So is that the only most important, or other systems are also very important? other system, ये देखो, there are 11 systems inside our body. हाँ, all the systems are equally important. Okay, all the system having different type of function. See, digestive system having the function of digestion, getting the food, that is energy for the cell. Okay, हाँ,
and that food, that assimilated food, it is also equally important to go outside. बराबर है? It should not accumulated inside our body. नहीं तो ये अपना बॉडी में सब गार्बेज हो जाएगा और वहां से कोई और अलग से कुछ तो भी डिसीजेस पैदा हो जाएगा. बराबर है? इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी देखिए, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वर्किंग. हु इज कंट्रोलिंग दिस? ये दोनों सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? दैट अवर एंडोक्राइन सिस्टम. सी, एंडोक्राइन सिस्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कुछ अदर एक दो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. ओके, hence that endocrine system is also equally important, but their functions are different, but these systems are working in coordination. These systems are working in coordination. What is happening in case of this lymphatic system, immunity system? These are these ATO, endocrine system. ये तो अपने आप it is an involuntary system, ये चलते रहता है. लेकिन ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सेमी है, सेमी. इसके लिए पुशअप की जरूरत है बाहर से. ये इनको ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है. ये कहां से, ये बाकी अदर सिस्टम आर डिस्टर्ब व्हेन अगेन ड्यू टू रॉन्ग डाइट एंड आवर तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस. डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. अपना दूसरा है स्केलेटल सिस्टम, कि जो अपने शरीर को स्ट्रक्चर देता है, उसको कवर करते हैं वो मस्कुलरिटी सिस्टम. ये तो जरूरत ही है. और उसके ऊपर भी एक सिस्टम है, दैट इज इंटीग्रेटरी सिस्टम, मींस अपनी त्वचा, दैट इज स्किन, इज कवरिंग आवर बॉडी. इसका यदि फंक्शन बिगड़ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो बाकी का तो सभी बिगड़ जाएगा. समझ गए ना? Yes, yes. So there is another question. कि हाँ. what about push-ups? Do they help to improve immunity? Push-up करने से immunity improve होती है क्या? हाँ, बरोबर. आता पुशअप है. व्हाट आई टोल्ड कि दिस ऑल लिम्फेटिक फ्लूइड आर कवर्ड ऑल ओव्हर द बॉडी. बरोबर आहे. आणि त्याला जर तुम्हाला चालना नाही मिळाली हिंदी तर ते तिथेच थांबतात. When I am doing the push-up, what is happening? I am doing the push-up. Only this particular muscle will get the movement. Okay, that particular muscle will get the movement, but that movement is not equal as good as these asanas. हे बघून घ्यायचं. Correct. कारण काय, आपण पुशअप आहे ना, हे पुशअप आपण जास्त वेळ नाही करतो आणि सोडून देतो, करतो आणि सोडून देतोय. ओके, सी द अगेन द मेकॅनिझम इन एक्सरसाइज अँड दिस योगा. आणि योगामध्ये आपल्याला 30 सेकंड, 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट, वी हॅव टू मेंटेन दॅट पोस्चर. बट इन एक्सरसाइज वी आर नॉट डूइंग दिस. हेन्स इट विल गेट ओनली 5% compared to the yoga. And is there any specific asana for to improve immunity? This all the asanas, you see, all the pressure and contraction asanas are improving the immunity. जितने भी आसन है जो प्रेशर देते हैं, that is contraction or relaxation, जितना भी मुद्रा है, that it is improving the immunity. Okay. All the asanas, not only asan, all the asana including pranayam, all the pranayam also, they are channelizing this system. Pranayam also channelizing this system, lymphatic system. In pranayam, this Shitali, Shitkari, yeah, all these pranayam are accelerating this system. Not a specific. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ आसन है, they are giving more impact, कुछ ज्यादा देते हैं और कुछ थोड़ा सा
अदर लेवल पे देते, लेवल इज समथिंग डिफरेंट। अभी योग मुद्रा मैंने किया, योग मुद्रा पहले मैंने वज्रासन किया, वज्रासन में मेरा ये इधर आ गया, वो उधर एक्यूमुलेट हो गया। अगेन आई डू द योग, मैंने वज्रासन किया, सब मेरा एक्यूमुलेट हो गया इधर पेट में। जब मैंने वो योग मुद्रा किया, अगेन इट गोज टू द हेड। ऐसा वो इंप्रूव करता है कंप्लीट। जैसे आप रिलीज करो, अभी आप जाओगे शीर्षासन में, शीर्षासन ऑल्सो डू द सेम थिंग। वो तो पूरा कंप्लीट हेड के ऊपर ही आएगा शीर्षासन। So there is one more question. हाँ, Is there any food specific to the alkaline food? What is the best alkaline food? all the alkaline foods very good. No, but can you say which one? Do you know any? Can you recommend few alkaline food? ठीक है, अल्कलाइन फूड में है सब ऑल फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, ऑल दिस। जो फ्रूट है जो वनस्पति जन्य है, वनस्पति जन्य फ्रूट्स, वनस्पति जन्य जो है वो दैट इज अल्कलाइन, और जो एनिमल सोर्स से आता है दैट इज एसिडिक। एनिमल सोर्स समझ गए? त्याच्यामध्ये तुमचं दही, दूध, मिल्क, मटन, मच्छी, हे सब इट इज ऑल एसिडिक। आणि जे वनस्पति जन्य है कि जे अपने वनस्पति से आता है, भाजीपाला, फ्रेश फ्रूट्स वगैरे, ते ऑल अल्कलाइन। आणि त्याच्यामध्ये मग त्याच्यातलेही त्यामध्ये काकड्या, हे काकड्या, लिंबू, इज ऑल अल्कलाइन। आपलं हळद, आणखी काय म्हणतो आपण त्याला, आलं, ऑल दिस अल्कलाइन। आलं, हळद, लिंबू, Adrak. अद्रक, अद्रक, जिंजर इज ऑल अल्कलाइन। तुम्ही बघा, त्याच्या नुसते एक सकाळी एक सर्वांचं मस्त कॉकटेल बनवा, जसा ज्यूस काढून थोडा थोडा, आणि सकाळी प्या, बघा तुम्हाला दिवसभर किती हेल्दी वाटतं। मी इव्हन तुम्हाला सांगतो की ज्याला कोणाला हार्टचा प्रॉब्लेम असेल ना, हार्टचा किंवा ब्लड प्रेशरचा, त्याने काय करावं, तर त्याच्यामुळे ते हार्ट प्रेशर वाढतं वगैरे, हे त्याला कारणीभूत आहे आपल्या ऍसिडिक। तर त्याच्याकरता उपाय काय माहिती आहे, की आपण रोजचं जे पाणी पितो ना, रोजचं पाणी पितो, त्या पाण्यामध्ये एक फोड फक्त लिंबाची एक खाप, एक स्लाइस ते टाकून ठेवायची। दॅट वॉटर बिकम अल्कलाइन फॉर युअर बॉडी। ते वॉटर जर तुम्ही दिवसभर 24 तास पिलं, बघा तुम्हाला एका महिन्याभरामध्ये तुमचं ब्लड प्रेशर कुठल्या कुठे बोलू। सर So there is one more question. हा, If the food is alkaline, but if it is not fresh, will the alkaline will still नाही, मग तसं ते, हे बघा, याची हे कशी असते माहितीये का, अल्कलाइन फूड्स कमिंग टुवर्ड्स द ऍसिडिक नेचर, जस जसं त्याला ते डिकम्पोज होत जातं ना, डिकम्पोजिशन जस जसं होत जातं तस तसं मग त्या ऍसिडिटी लेवलला जातं। म्हणून आपल्या याच्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये याच्यामध्ये काय सांगितलंय की बासं फूड खाऊ नका, त्याला रिझन ते आहे। yeah, Hindi. हाँ, एक्चुअली क्या था कि जो अपना जो एंशिएंट स्क्रिप्चर में वगैरह लिखा है कि बासा जो कल का फूड है आज मत खाओ, इसके लिए यही रीजन है, वेदर इट वाज वो कल अल्कलाइन होगा लेकिन उसका डिकम्पोजिशन होके वो आज एसिडिक बन गया, इसके लिए मत खाओ। जो भी अपन ने जो पहले अपने जो एंशिएंट लोगों ने बताया है उसमें कुछ न तो भी कुछ प्रिंसिपल है, और ये इसका प्रिंसिपल। unnecessarily we are sub dumping this and disturbing our pH of our blood। pH अपना ब्लड का pH ध्यान में रखो और वो हिसाब से खाओ, और कभी भी खाओ तो फ्रेश लाके खाओ, कम खाओ, फ्रेश लाओ खाओ।
असं नाही की बाबा फ्रीज मधलं मला चालत नाही. फ्रीज इज ऑल्सो, त्याच्यामध्ये आपण करू शकतो, कारण तुमच्याकडे US मध्ये तुम्हाला थंडी प्रत्येक दिवशी जाऊन फ्रेश आणावं लागतं आणि ते मार्केटमध्ये सुद्धा फ्रेश राहणार. पण तिथलं हवामानामुळे काय आहे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस फार कमी होते आणि इट इज अ कूल वातावरण ना. Yeah. त्यामुळे तिथे भाजीपाला तुम्ही तिकडे खाऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. भाजीपाल्याचा ज्यूस बनवून प्यायचा मस्तपैकी, ताजा ताजा. कुठल्याही भाजीपाला आणायचा, ज्यूस बनवायचा आणि प्यायचा. पहा तुम्हाला तुमच्या तब्येतीत काय फरक पडतो. I अजून think I think now no more question. So if if you have anything else to explain on anatomy, otherwise we are good to close the call. नाही, आपला आज 7:30 पर्यंत आहे ना. Oh, hi Arjun. Like we have still 30 minutes. मग आता आपण अजूनपर्यंत एक हे घेऊया ना, प्राणायाम. Oh, चालेल. Yeah. प्राणायाम करूया. Yeah. हा, Yes. Yes. कारण प्राणायाम इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर दिस इम्युनिटी सिस्टीम. कारण काय माहितीये का, मी आधीच एक्सप्लेन केलेलं की कपालभाती Can you फॉर Hindi? क्लीन लंग्स. बरोबर आहे. आपले हे लंग्स आहेत, त्या लंग्सच्या आतून ही आपली Hindi. ही ब्रोंकाय आहे, ट्रॅक, म्हणजे आपण त्याला काय श्वास नलिका, ही एक मेजर श्वास नलिका आहे. ती इथे 2 पार्ट मध्ये होते. 2 पार्टची परत 2 लंग्स मध्ये त्याच्या ब्रांचेस होतात आणि शेवटच्या ठिकाणी त्यांच्या अल्व्हिओला आहे. आणि ज्यावेळेस एखादा ऑर्गॅनिझम जातो श्वासामार्गे, तो डायरेक्ट त्या फुफ्फुसातून त्या अल्व्हिओलाला जाऊन टेकतो आणि अल्व्हिओलाच्या मुकेस मध्ये त्याचं मग पुढे त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतो आणि ते अल्व्हिओला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. जे कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन तिथे देतात, ही जी क्रिया आहे तिथे तो ऑर्गॅनिझम जाऊन बसतो आणि त्या क्रियेला हॅम्पर करतो. त्यामुळे आपल्याला श्वासोच्छवासाला त्रास होतो आणि आपलं ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी कमी होतं. कोरोनाचं कार्य तेच आहे. म्हणून त्याला तिथपर्यंत पोहोचूच द्यायचं नाही. म्हणून कंटिन्यू डू कपालभाती. कपालभातीमध्ये काय माहितीये, यू आर फोर्सफुली गिव्हिंग द स्ट्रोक आणि जी हवा आपली बाहेर जाते ना, त्यामुळे असले नसलेले सर्व काय ऑर्गॅनिझम असले ते बाहेर फेकले जातात. लाईक दिस. वाटल्यास घाई करायची नाही, हळूहळू स्ट्रोक चालू करायचे. हे कपालभातीमध्ये, या कपालभातीमुळे काय होतं की कंटिन्युअस स्ट्रोक दिल्यामुळे आपल्या शरीरातलं ऑक्सिजनचं तर प्रमाण वाढतंच, परंतु हे आपलं हे जे ब्रेन मधले जे डॉर्मंट सेंटर आहेत ना, तिथे सुद्धा ब्लड सप्लायचं प्रमाण वाढून जातं आणि त्यामुळे ते सर्व ऍक्टिव्हेट होतात. ते ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळे आपल्याला एकदम एनर्जेटिक वाटायला आणि फ्रेश वाटायला. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कपालभाती नंतर ऍप्निया स्टेज येते, कुंभक येते. त्याचं रिझन तेच आहे कि ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है, अपने शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है, तब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए अपने को श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन है. श्वास क्यों लेता है? ऑक्सीजन के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए लेते हैं. लेकिन ऑक्सीजन ऑलरेडी है, उसका प्रमाण यदि ऑलरेडी बढ़ गया है तो कुछ टाइम के लिए उसकी जरूरत नहीं. इसके लिए अपनी श्वास अपने आप रुक जाती है और वो रुकी हुई श्वास है उसको बोलते हैं कुंभक और एप्निया स्टेज. और वो टाइम पे अपना जो माइंड है ना, एक्चुअली दैट इज समाधि अवस्था. वो जो पॉइंट है ना, कुछ टाइम के लिए जो श्वास रुकती है और माइंड बिकम जीरो, वो अवस्था को अपन समाधि अवस्था भी बोल सकते हैं. कुछ नहीं, जीरो रहता है उधर, जीरो अवस्था. दिस इज हैपनिंग इन कपालभाती. पूरा अपना सर्कुलेशन फास्ट होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्या है. और जो अपना जो हलचल है अपना इसका, इज कंप्लीट बॉडी. ये तो अपने को बाहर से तो पेट हिलता है, लेकिन अंदर से क्या होता है
It is a complete organ. Complete organ. See, in our this part, neck to the below navel, इसमें ऊपर का पार्ट है इधर, यहां से ऊपर lungs है, lungs. There are two lungs. Only lungs are there in chest. Nothing. और उसके बाद में अपना छाती का पिंजरा है और उसका मसल है, बाकी कुछ नहीं है इधर. और इसके नीचे आपका है स्टमक, पैंक्रियास, देन लिवर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, prostate gland. In female there is a ovaries, then urinary tract. All these are organs are in A. और सुनो अभी, और ये दोनों के बीच में लंग्स और ये एब्डोमेन के बीच में एक पर्दा है. देयर इज अ डायफ्राम, एक पर्दा, मेम्ब्रेन है. ये मेम्ब्रेन है, वो दोनों एरिया को सेपरेट करता है. ऊपर का नीचे नहीं जा सकता, नीचे का ऊपर नहीं आ सकता है. ये सुन देख लो, नीचे का ऑर्गन का कुछ भी रहेगा तो ऊपर नहीं आएगा, नो. और ऊपर का कुछ लंग्स का कुछ है तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में पर्दा है. ओके. अब देखो इसमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, मैं बोल रहा हूँ. आई टोल्ड यू द मूवमेंट, इट रिक्वायर्स मूवमेंट. बराबर है, इम्यूनिटी के लिए. तो मूवमेंट कैसे होती है, जैसे अपन स्ट्रोक देते हैं, होता क्या है, अंदर के जो ऑर्गन है वो ऊपर जाते हैं, और दैट पुशिंग ओवर दिस डायफ्राम, ऊपर. जैसे ये डायफ्राम ऊपर पुश करते हैं, अपने लंग्स है ना, वो लंग्स सिकुड़ते हैं और हवा बाहर जाती है. हवा बाहर जाए, जैसे अपना ये एब्डोमेन छोड़ते हैं, हवा एकदम भस से अंदर आती है, दोनों लंग्स फूल जाते हैं और डायफ्राम पीछे चला जाता है, नीचे जाता है, और दूसरे स्ट्रोक में वापस ऊपर जाता है, ऑर्गन सहित ऊपर जाता है और हवा बाहर जाती है. जैसे ही छोड़ते हैं, हवा अंदर आती है, और इससे ये मूवमेंट भी होती है. कंप्लीट मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन एंड चेस्ट. उसमें से तो पूरा अपना लिम्फेटिक सिस्टम इधर का उधर हो जाता है, कंप्लीट सर्कुलेट. इससे भी इसकी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है. देखिए कैसे होता है. ये सिर्फ एब्डोमेन का मूवमेंट है, एब्डोमेन और ये डायफ्राम का मूवमेंट है. नथिंग, अपना कोई बाकी पार्ट नहीं हिलेगा, कोई बॉडी पार्ट नहीं हिलेगा, ओनली एब्डोमेन एंड डायफ्राम इन कपालभाति. ओके. आपको यदि किसी को करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए मुझे. नहीं तो क्या होगा, इनकरेक्ट आप कैरी ऑन करोगे तो आपको तकलीफ भी होगी. There is a question. हाँ, Can you do Kapalbhati in sitting in the chair? कर सकते हैं. यदि आपको सिटिंग का प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट आपको सिटिंग पोजीशन में मिलने वाला है वो चेयर में नहीं मिलेगा. क्यों, मैं बोलता हूं आपको. व्हाट इज हैपनिंग इन सिटिंग पोस्चर. अब सिटिंग पोस्चर के 4 मेडिटेटिव पोस्चर है. हाँ, उससे क्या होता है, वी आर लॉकिंग आवर दिस नीज. ओके, इधर भी सब पूरा लॉक हो जाता है. होता क्या है, वी स्टॉप द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर लेग्स. यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन लेग्स में खत्म हो गया. ओके, वो नहीं जाएगा. और होता क्या है, देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ ब्लड इन द एब्डोमेन, इधर ये पार्ट में. ओके, इधर में. और जब अपन कपालभाति करते हो, मैक्सिमम ब्लड इज अवेलेबल, मैक्सिमम ब्लड इज अवेलेबल, मैक्सिमम लिम्फेटिक फ्लूइड इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट. जैसे अपन वंगन बोलते हैं ना, इस एक्ट एज ए लाइक वंगन, ऐसे ही समझो आप, यानी जल्दी समझ में आ जाएगा. जितना उधर ज्यादा उतना आपका इफेक्टिव आएगा. चेयर में क्या होगा, आपके पैर नीचे जाएंगे और पूरा सर्कुलेशन जो है, जितना ब्लड आपको मिलना चाहिए परसेंटेज में, वो आपको नहीं मिल पाएगा.
इसके लिए थोड़ा सा इफेक्ट डाउन होगा, आपको थोड़ा सा मस्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा होगा और योगिक इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अभी कुछ अपने को अब बैठ ही नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन डू ए चेयर, नो प्रॉब्लम। आई कैन डू इन द चेयर, प्रॉब्लम। हाँ, अभी ये कपालभाति का इंपॉर्टेंस समझ गए। इट इज एक्चुअली व्हाट इज द मैकेनिज्म। Yeah. कपालभाति का एनाटॉमी। Yeah. There is one more question. हाँ, Can you do pranayam after eating? मतलब नो, pranayam, kapalbhati should be done only in empty stomach for better result, effective result. आप इसमें अनुलोम विलोम वगैरह जो है उसमें वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन होता क्या है मैं बताता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर ईटिंग। अपन कुछ खाने के बाद होता क्या है, वी आर एंगेजिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि खाना आ गया। जैसे ही अपने अंदर खाना आ गया, दैट अदर सिस्टम इज अलर्ट, अरे कुछ तो भी आ गया, उसको पचाने के लिए अपने को अपना उनका कार्य शुरू हो जाता है। जैसे अपन खाना खाते हैं, अपना एंडोक्राइन सिस्टम उसके काम में लग जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसके काम में लग जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके काम में लग जाती है। दे ऑल द सिस्टम आर एंगेज टू डाइजेस्ट दैट फूड। फिर आप जो भी कुछ करोगे, प्राणायाम वगैरह कुछ भी, वो सिस्टम का जो अलर्टनेस है वो आपकी तरफ नहीं आएगा, वो सिस्टम की तरफ जाएगा। दिस इज डिसेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज नहीं रहेगा। एंड इन एम्प्टी स्टमक देयर इज नो वर्क फॉर ईच सिस्टम। कोई भी सिस्टम के लिए काम नहीं है। आप आराम से कोई भी साधना कर लीजिए, वो पूरा 100% आपको काम आएगी, और उसका असर जो है जो साधना का पूरे हर एक सिस्टम के ऊपर 100% गिरेगा। इसके लिए बोला गया है कि कोई भी प्राणायाम या आसन प्राणायाम सुबह 4 बजे करो, 4-5 बजे, सुबह 6 बजे तक करो, यानी उसको अपन ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो टाइम पे क्या रहता है, पूरा बॉडी अपना पूरा स्टमक विमन सब एम्प्टी रहता है, ऑल द सिस्टम्स आर वेरी इन कंफर्टेबल पोजीशन। इसके लिए अपन सुबह का रिकमेंड करते हैं। दिस इज द रीजन इट शुड बी डन इन द एम्प्टी स्टमक फॉर बेटर रिजल्ट। नहीं तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, फिर इंडोक्राइन सिस्टम वो काम पे लग जाएगी, तुम्हारे ये एक्शन तुम कर रहे हो दैट बिकम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बन जाए, दैट विल नॉट बिकम अ योगा। ओके, अगेन there is one more question. Hmm. Do we have to do Kapalbhati while exhaling? Hmm. So I'm also not. I didn't get the question. Also, what do you? So Swara, what do you mean by I'm not able to? एक्सेलिंग, हे मला प्रश्न नाही समजला. मला पण नाही कळाला तो. We have to do Kapalbhati while exhaling. So नाही, एक्सेलिंग explain Kapalbhati कशी करायची. कपालभातीचं काय त्याचं, हा म्हणजे कपालभातीची तुमची प्रोसिजरच लक्षात नाही. कपालभाती काय आहे हे बघा. नाव आय एम नॉर्मल, ओके, नॉर्मल आहे. आता माझ्या याच्यामध्ये मी श्वास घेतला, माझ्या लंग्स मध्ये हवा आली, ओके, द एअर इनसाइड द लंग्स, ओके. व्हेन आय गिव्ह स्ट्रोक टू द ऍब्डोमेन, तो डायफ्रॅम वर गेला, ओके. डायफ्रॅम वर गेल्यानंतर त्याने काय केलं, लंग्सला वर पुश केलं आणि त्या लंगची हवा माझी बाहेर गेली. ज्यावेळेस मी माझा हा ऍब्डोमेन सोडला, हवा आत आली परत, आणि परत तीच हवा मी बाहेर सोडणार, फक्त स्ट्रोक देऊन सोडणार. तिच्यामध्ये काय कन्फ्युजन आहे? No, there is no. I think it's good now. कारण I think माझी हवा पोटाला स्ट्रोक देऊन डायफ्रॅम वर उचलून मी त्याला पुशअप करतोय.
लाईक दिस. ओके. अजून हे जर झालं असेल कपालभाती तर मग आपण अनुलोम विलोम कडे जाऊया. Yeah, go ahead. Yeah. आता अनुलोम विलोमचं काय आहे हे, अनुलोम विलोम मध्ये ह्या दोन नाडी आहेत नॉस्ट्रिल, याला आपण या नाडीला म्हणतो पिंगला नाडी, हिला म्हणतो इडा नाडी. हिंदी. हाँ, इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, ये नाड़ी को बोलते हैं ईडा नाड़ी. बरोबर है. देर आर टू नॉस्ट्रिल. ओके, दोनों नॉस्ट्रिल है, लेकिन ये सिर्फ ओनली नॉस्ट्रिल श्वास लेने के लिए और छोड़ने के लिए नहीं है. बोथ द नॉस्ट्रिल फंक्शंस आर डिफरेंट. दोनों का फंक्शन अलग अलग है. दोनों का फंक्शन पहले आप समझ लीजिए क्या है. ये जो ईडा नाड़ी है, ईडा नाड़ी, जब आप ईडा नाड़ी से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका असर आपके ये लेफ्ट ब्रेन में, अपना राइट ब्रेन में पड़ता है. ये राइट ब्रेन, इसका कनेक्शन है, ये कनेक्शन है ईडा नाड़ी का, यानी लेफ्ट का राइट से कनेक्शन है और ये राइट का लेफ्ट से कनेक्शन है. इससे क्रॉस कनेक्शन है. सुनो अभी. हाँ, अभी ये कंट्रोलिंग पॉइंट है. दोनों नॉस्ट्रिल इज अ कंट्रोलिंग पॉइंट. अभी लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन क्या है, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन क्या है इन डे टू डे लाइफ? एक्शन, क्रिएशन, एक्शन, क्रिएशन, डेयरिंग, वायलेंस, जो भी है वो है ये लेफ्ट ब्रेन का. और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तुम्हारा राइट नॉस्ट्रिल, अपना राइट नॉस्ट्रिल. राइट नॉस्ट्रिल तुमको कंट्रोल कर रहा है ये लेफ्ट ब्रेन को. दिस इज लेफ्ट ब्रेन. हाँ, ये लेफ्ट ब्रेन तुमको राइट नॉस्ट्रिल कंट्रोल कर रहा है. और इसका फंक्शन क्या है? राइट, सॉरी वो उल्टा दिखता है ना, इसके लिए. हाँ, ये लेफ्ट ब्रेन है. लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है एक्शन, डेयरिंग, पूरा. हाँ, और उसको कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा ये राइट नॉस्ट्रिल, मीन्स पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी. और जो ईडा नाड़ी है ये कर रहा है अपना राइट ब्रेन. इसका फंक्शन क्या है? ये राइट ब्रेन, इमोशन, शांति, पीसफुल, शांति, पीसफुल, पूरा एकदम शांति से रहना, शांति से रहना, नो वायलेंस, नथिंग, शांति से रहना. इमोशन, लव, ये सब इसका काम है. अभी देखो, समझो, जिसकी नाड़ी, अभी ये नाड़ी जिसकी कार्यरत है, और दोनों नाड़ी कभी भी इक्वल नहीं चलती है. दिन भर में दोनों नाड़ियां इक्वल नहीं चलती. ये भी सुन लो, इज नॉट इक्वल. 1 घंटा ये चलती है तो 1 घंटा ये चलती है, तो 1 घंटा ये चलती है, तो 1 घंटा ये चलती है. कोई कायम नहीं बंद होती है, लेकिन स्लो हो जाती है और एक ज्यादा चलती है. जैसे ही ये नाड़ी ज्यादा चलती है ये एक्टिवेट हो जाता है. फिर तुम्हारे इमोशन, लव, ये वो सब आप पूरा फिर देवदास बन जाते हैं यदि ये ज्यादा फास्ट चल रही है तो. ये ओके, ये जो राइट ब्रेन को कंट्रोल करने वाली लेफ्ट नाड़ी यदि ज्यादा जोर से चालू है. यदि पिंगला नाड़ी चालू है जोर से, देन यू बिकम वेरी क्रिएटिव, एनर्जेटिक, और ये सब पूरा डेयरिंग, ये वो सब बन जाता. ये चालू है. अभी मेरे को बोलो, कोई भी एक एक्स्ट्रा चालू रहना अच्छा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ये मेरी ज्यादा हो गई तो मैं देवदास बन जाऊंगा, और ये ज्यादा हो गई तो साला मैं पूरा वायलेंट बन जाऊंगा. इसके लिए ये दोनों नाड़ी इक्वल चलना बहुत जरूरी है. दोनों नाड़ी का चलना, इक्वली चलना, एक साथ चलना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये नाड़ियां अपने ये ब्रेन को बैलेंस कर रही है. यदि ये दो नाड़ियां इक्वल चलेगी तो ये दोनों ब्रेन बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं. नहीं तो उसका रिजल्ट आपको मालूम है, ये ज्यादा चली तो इसका क्या होने वाला है, और ये ज्यादा चली तो इसका क्या होने वाला है. ओके. और ये दोनों एक साथ चली तो जो अपना माइंड का जो कंट्रोल है
हेमोस्टेटिस बैलेंस, शरीर का जो अदर सिस्टम है उसका भी बैलेंस अपना अच्छा हो जाए, यानी आइडियल बैलेंस हो जाए। पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो सब बैलेंसिंग में आ जाए, अपने आप बैलेंसिंग। क्योंकि वो ब्रेन का कंट्रोल है ना इधर, दोनों ब्रेन का। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों नाड़ियां। और अपन इसके लिए अपन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कर सकते हैं कि वी कैन कंट्रोल आवर सेल बाय डूइंग अनुलोम विलोम, बाय बैलेंसिंग बोथ द नाड़ी। उसके लिए करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से बोथ द नाड़ीज आर बैलेंस, बोथ द नाड़ीज इक्वली वर्किंग। उसको यदि ये इक्वली वर्किंग बोलते हैं तो योगा में है कि अपनी जो थर्ड नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, वो ओपन होती है, जो ये अपने ब्रेन को बैलेंस करने वाली, ब्रेन को, पूरे ब्रेन को बैलेंस करने वाली नाड़ी वो ओपन होती है, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ओके, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये नाड़ी का कंट्रोल इधर जाता है सीधा मूलाधार चक्र में, इसका ये पूरा मूलाधार चक्र में जाता है। और मूलाधार चक्र से यदि उद्दीपित होके ऊपर क्रॉस करके 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 ऊपर आती है, इधर आती है और इधर ओपन होती है, उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। यहाँ से हवा जाके नीचे घूम के ऊपर आके इधर अपने कपाल में ओपन होती है और अपने ब्रेन को बैलेंस करती है। अभी ये मार्ग यदि आपका कोई, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको तुरंत उसका इफेक्ट मिलेगा। और उसमें ये कोई चोकअप है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी और थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और इफेक्ट थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। इसके लिए अपन कपाल भाती में नाड़ी शुद्धि इसके लिए बोलते हैं, और वो नाड़ी शुद्धि के लिए ही अनुलोम विलोम करते हैं। ओके, अभी इसमें आपको कुछ यह है तो आप पूछिए। No, there is no question. हाँ, पूरा उसमें क्लियर हो गया अनुलोम विलोम। Yeah, I guess. हाँ, अभी वापस इसमें ही एक अनुलोम विलोम में यदि आपने एखादा मंत्र चैंटिंग कर लिया, मंत्र चैंटिंग, कोई भी मंत्र चैंटिंग कर लिया, एनी मंत्र नहीं, ओम नमो शिवाय मंत्र है, तो वो भी चार लिया तो आपको उसको दुगना नहीं, 5 टाइम्स उसका फायदा मिलता है। कितना? 5 टाइम्स इसका बेनिफिट आपको जाएगा, 5 टाइम्स। यदि अनुलोम विलोम में आपने मंत्र का चैंटिंग कर लिया तो उसको बोलते हैं त्रिमूर्ति प्राणायाम। इट इज कॉल्ड त्रिमूर्ति प्राणायाम। ये यदि आपको 15 मिनट भी कर लिया तो बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको टाइम नहीं है उसके लिए मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं। आपके यहाँ पर मंत्र चैंटिंग भी हो जाता है उसमें। अनुलोम विलोम है, शादी सबको मालूम है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। मैं आपको पूरा मुंह से बोल के बोलूंगा, लेकिन वो करना है अपने मन में। ओम नमो शिवाय। जब मैंने ओम बोला, ओम, नाकपुड़ी बंद, नमो, दोनों नाकपुड़ी बंद हुए, नमो शिवाय। वापस मैंने किया ओ, दोनों नाकपुड़ी बंद, नमो शिवाय। वापस ओ, नमो शिवाय। ये मन के मन में बोलना है। ये मैंने आपको समझने के लिए मैंने ज्यादा इससे किया। देखिए,
देखो आपको यदि ये करने लग जाओगे ना आप, इतना ब्यूटीफुल आपको एक्सपीरियंस आएगा, क्या रहा है, आप पूरा अपना माइंड एकदम स्टेबल हो जाएगा स्टडी के लिए, खेलने के लिए। अब इतना स्मूथली खेल सकोगे और फोकस कर सकोगे कि आपको पहले कभी नहीं इतना फोकस आया। आपका पूरा फोकस बढ़ जाएगा खेल के ऊपर, आपको बॉल के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, टेनिस बॉल के सिवा। हाँ, आप करो ये। ओके, अनुलोम विलोम। अभी आगे जाना है अपने को, क्योंकि आप कर रहे हैं हर रोज, इसके लिए आपको ये मीनिंग मालूम होना बहुत जरूरी है। So क्या इसके is it- फायदे, इसके बेनिफिट्स आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। यदि आपको मालूम नहीं रहोगे तो कुछ फायदा नहीं। is a question here. अनुलोम विलोम कपालभाति में और कुछ पूछना है? Yes, yes, there is a question. हाँ, Someone is asking how much time one should practice Anulom Vilom and Kapalbhati as a healthy से person. किती वेळ करायचं? कपालभाति पहले अपन लेंगे। कपालभाति, कपालभाति में क्या है कि व्हेन वी डू स्ट्रोक, कुछ स्ट्रोक के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद वी अचीव द लेवल, दैट इज वी कॉल एपनिया स्टेज और कुंभक। ओके, एपनिया स्टेज और कुंभक, दैट स्टेज वी ऑलरेडी अचीव। वो एक बार स्टेज अचीव होने के बाद अपन आगे कुछ कंटिन्यू भी किया तो उसका कुछ फायदा नहीं, उसके बाद में वो एक्सरसाइज होने लग जाएगा। योगा के लिए आप कपालभाति कर रहे हैं तो ये 2 3 4 5 मिनट्स मैक्सिमम। हाँ, और आपको और करना है तो आप थोड़ा कुंभक का अनुभव लीजिए, बीच में कुंभक का अनुभव लीजिए। एक बार वो कुंभक भी चला गया फिर वापस चालू करिए, फिर आप ऐसे 1 घंटा भी कर सकते हैं 5-5 मिनट के गैप से। दिस इज कपालभाति। ओके, और कुछ लोगों को क्या है, कुछ 10 मिनट करने के बाद भी कुंभक की स्थिति आती नहीं है, तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। यदि आपको कुंभक की स्थिति आ जाती है 2-3 मिनट में ही, तो आप वहां पे रुक जाना है, उसका अनुभव लेना है, अनुभव लेने के बाद वापस रिपीट करना है और वापस अनुभव लेना है। जितना अनुभव लोगे उतना आपको समाधि अवस्था जल्दी प्राप्त होगी। लेकिन कुछ लोगों को 10 मिनट के बाद भी नहीं आता अनुभव, तो समझो कि वो गलत कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग इन करेक्ट वे, ही इज नॉट डूइंग इन अ टेक्निकली करेक्ट, ये आप समझ लो। यदि इन केस ऑफ कपालभाति। हाँ, अभी दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए कोई टाइम नहीं है। इसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है अनुलोम विलोम में भी कि आप अनुलोम विलोम में श्वास भी करना आप भूल जाओगे, अपने आप वो बंद हो जाएगा, आपका वो श्वास करना ही बंद हो जाएगा, आप पूरा समाधि में चले जाओगे, आराम से ऐसा बैठ जाओगे समाधि अवस्था में। लेकिन कब? जब आप अनुलोम विलोम सही तरीके से कर रहे हो और समाधि अवस्था इतनी जल्दी नहीं आती हो। आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1-1 घंटा 2-2 घंटे लोग करते हैं ना, तब कहीं वो आती है। आप और अभी आपका मैक्सिमम का आपको ये मिल गया। जब तक आप समाधि अवस्था में नहीं जाते हैं तब तक आपको करना है, ये मैक्सिमम का आंसर है यार पूरा। आगे One second. हेलो, No, I think that बच्चे लोगों को क्या पूछना है? बच्चे लोग, yeah, there are some kids there. हाँ किड्स भी है कुछ, उनको भी क्या है आपके मन में जो भी पूछना है पूछ लो। आपको सूर्य नमस्कार सीखना है क्या? सूर्य अरे, नमस्कार करेंगे अपन कल। हाँ, ओनली सूर्य नमस्कार।
हा प्रबोध, हा आगे पुढे. नाही, आता आता काही कोणाचा प्रश्न नाहीये. देर आर नो. मला मला एक प्रश्न आहे. हा. हा. कदाचित तो आज किंवा उद्याही तुम्ही ऍड्रेस करू शकता. नकार आणि भ्रामरी, ऍक्च्युअल भ्रामरीचा आवाज ऍक्च्युअल जसा तुम्ही काढतात तसा येत नाही, तो नकारासारखा होतो. येस येस येस, करेक्ट. ते आताच दाखवतो मी तुम्हाला. येस, हेच मला हवं आहे तुमच्याकडनं. ऍक्च्युली हेच मला मुद्दे हवेत. आता बघा, हिंदी. आपण ज्या वेळेस मकार करतो त्यावेळेस मकार मध्ये काय करतो, मकार मध्ये आपली जीभ कुठे असते, आपल्या दाताच्या पाठीमागे असते. दाताच्या पाठीमागे असते चिकटली मकार मध्ये. बघा आता मी करतोय, दाताच्या पाठीमागे जीभ आहे माझी. त्यामुळे मकार येतोय, बरोबर आहे. तो ओम मधला मकार आहे. ज्यावेळेस मी भ्रामरी करेल ना, त्यावेळेस काय करेल, माझी जीभ आहे ना ही टाळूला लावेल, अशी टाळूला लावेल. आणि आता करेल त्यावेळेस नकार येईल बघा. नकार. आता मकार आणि नकाराच्या इफेक्ट मध्ये फरक आहे. मकारामध्ये कम्प्लीट तुमच्या याला व्हायब्रेशन आहे इक्वल, पण ज्यावेळी तुमचा नकार आहे ना, नकाराला तुमच्या कम्प्लीट ब्रेनला व्हायब्रेशन आहे. कम्प्लीट ब्रेन व्हायब्रेट होतोय. त्यामुळे काय होतंय, तुमच्या अल्फा बीटा थीटा ज्या वेव्हज आहेत, ज्या आपण EEG ने मोजतो, त्याचं सर्व सेटिंग होतं. त्यामुळे आपला ब्रेन काम अँड क्वाइट बनतो, एकदम शांत बनतो. कितीही तो डिस्टर्ब असू द्या, तो एकदम शांत होतो. त्यामुळे आपल्याला विचार करण्याची ताकद येते. नकार नकार ना का मकाराने? नकार नकार नकाराने. नकाराने कसं आहे ना, तुमची जीभ आहे ना टाळूला लावायची अशी, आणि नंतर करायचं नकार, आणि त्यांचे व्हायब्रेशन तुमचे डायरेक्ट ब्रेन मध्ये जाणार, आणि ब्रेनचे जेवढे फंक्शन आहेत ते सर्व तुमचे सुटणार, सर्व सॉल्व्ह होणार. कोणाला, मी तर म्हणतो कोणाला गोळ्या खातात ना, त्यांच्या गोळ्याही कमी होऊन जाणार. पण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, मी सांगतो म्हणून नाही कमी करायच्या, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कमी करायचं. डॉक्टर स्वतः सांगणार तुम्हाला. पण केव्हा, ज्यावेळी तुम्ही हे केलं रेग्युलर तर. नाही तर मग काय, ते ऐकून नुसतं समजून उपयोगाचं नाही, करणं महत्वाचं आहे. कारण योगा इज अ एक्सपिरियन्शियल सायन्स, इट इज अ प्रॅक्टिकल सायन्स. आणि तुम्ही स्वतः अनुभव घेतला तरच तुम्हाला त्याचं महत्व आहे. नाही तर मी कितीही सांगितलं तर महत्व नाही. मी तुम्हाला फक्त गाईडलाईन देऊ शकतो. ओके. हा, मी हिंदीत बोलतोय कारण बाकीचे हिंदीत म्हणून. सो नकार, नकार और भ्रामरी, मकार और नकार, उसमें डिफरेंस पता है, लेकिन जो डिफरेंस पता करना है वो है नकार और भ्रामरी. भ्रामरी में ऑलवेज डू नकार. So भ्रामरी is nothing but nakar only. Nakar, yes, no makar. In a Brahmari there is only nakar. Okay. In Omkar chanting there is a makar. So There is a yogic swasan, there is a makar. So whenever you say भ्रामरी करना है, उसका मतलब नकार ही करना है, उसमें नकार प्लस समथिंग नहीं है. नहीं नहीं नहीं, भ्रामरी ने सिर्फ नकार ही करना है. समझ गया, थैंक यू. हाँ, और बेटर इसके लिए. सो एक क्वेश्चन है. हाँ. Can I eat after yoga? 2 घंटे के बाद. मतलब लंच या डिनर 2 घंटे के बाद योगा के. हाँ, क्योंकि तब तक अपनी बॉडी है ना स्टेबलाइज हो जाती है, रिलैक्स होती है. और आप थोड़ा सा योगा के बाद शवासन कर लो ना, तो 1 घंटे का पीरियड वापस कम कर सकते हैं. शवासन के बाद जितना अपन शवासन करोगे, जितनी बॉडी अपनी रिलैक्स होगी, उतना अच्छा है इसके लिए. So it's a zero gravity. हाँ, जीरो ग्रेविटी पे सो जाना है. जितना आप जीरो ग्रेविटी सो जाओगे उतना आप रिलैक्स हो जाओगे.
what is happening in actually in शवासन, see, अपन बॉडी है, बैठे हैं, हाँ, बैठने के बाद क्या होता है, अपना पूरा ग्रेविटी अपने सीट के ऊपर आ जाता है, और पूरा कुछ माइंड का जो पार्ट है दैट इज एंगेज इन दैट ग्रेविटी, कुछ 50-60 समथिंग, वो पूरा कॉन्शियसनेस अपना ये ग्रेविटी में एंगेज है. ओके, कुछ है अपना बैठे हैं, किधर स्ट्रेच आ रहा है, कोई इधर प्रेशर है, उसमें एंगेज है माइंड. सी, इसके लिए माइंड भी अपना एंगेज हो गया पूरा. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू इन द लाई डाउन पोजिशन, शवासन में हम जाते हैं, तब पूरा अपना बॉडी जीरो ग्रेविटी में चला जाता है. जैसे ही वो बॉडी जीरो ग्रेविटी में चला जाता है, और बॉडी इज टेकिंग कंप्लीट रेस्ट, 100% रेस्ट. और माइंड का जो है, माइंड का जो टेंशन रहता है 90% कम डाउन, ओनली 10% अलर्ट स्ट्रेस रहता है माइंड के ऊपर, 10%. और जो 90% जो माइंड है दैट वी कैन यूज इन द योग निद्रा. और ऐसे हालत में यदि आपको, यदि अलर्ट में कॉन्शियसली आप कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, तो सबसे ग्रास्पिंग आपको सब हो जाता है, पूरा ग्रास्पिंग हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड एम्प्टी है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन नहीं है. दैट 90% माइंड यू कैन यूटिलाइज और लिसनिंग समथिंग गुड, कीर्तन भजन जो भी है वो सुनो, योग निद्रा सुनो, कुछ संकल्प करो वो टाइम पे, दैट इज कॉल्ड योग निद्रा. Okay, so it's a question. Sharva Sharayu has a question, I think. हाँ बोला ना. सर, हा, मी शर्वशरीची मम्मी बोलते. सर, अनुलोम विलोम मध्ये आपण जे ब्रेनचे फंक्शन सांगितले, राईट फंक्शन आणि लेफ्ट फंक्शन वेगवेगळं, हो. राईट ब्रेनचं फंक्शन आणि पण सर माझा जो छोटा मुलगा आहे ना तो लेफ्टी आहे, तर मग त्यांचे फंक्शनिंग काही डिफरंट असतात का? नाही, लेफ्ट त्यांचं हँड, काय लेफ्ट. नाही, त्यात हे शेवटी काय माहितीये, हे तुमच्या याच्या लहानपणच्या सवयीवर ते ठरलेलं असतं. आणि त्याचा लहानपणापासूनच काही त्याचा जो, आता त्याचा जो लेफ्टी आहे, तर मग राईट ब्रेन त्याचा थोडासा हे असेल, ऍक्टिव्ह असेल. म्हणजे ते त्याच्यामध्ये अनुलोम विलोम मध्ये जे त्याच्यामध्ये बघा, त्याच्यामध्ये तो लेफ्टी आहे म्हणून काही आहे असं ऍबनॉर्मल असं काही नाहीये. मी सुद्धा लेफ्टी आहे, आय एम ऑल्सो लेफ्टी. फक्त खेळण्याकरता मी लेफ्टी आहे, जेवण खाणं लिहिणं माझा राईटी आहे. ओके ओके, हा, थँक्यू. समजा जर एखादं फिजिकली किंवा फिजिओलॉजिकली काही प्रॉब्लेम असेल तर समजायचं की काहीतरी समथिंग रॉंग, पण हे तर तुमचं रुटीन आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, फंक्शन त्यांचं सेम करतात, राईट हँड वाल्यांसारखंच फंक्शनिंग ब्रेनचं सेमच असतं. सेमच आहे, सेम, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. लेफ्टीवाले थोडेसे जरासे सरस असतात, 1% नाही का होईना. थँक्यू सर. गुरुजी, माझा एक लास्ट क्वेश्चन आहे. मला बोला ना. तुम्ही सर्वांना जरा दाखवू शकता का उज्जयी प्राणायामच्या स्टेप्स काय आहेत? लाईक तुम्ही कपालभातीमध्ये दाखवल्या होत्या ना, आधी श्वास सोडायचा, मग हे होतं, मग ते होतं. सो उज्जयीच्या एक्झॅक्ट स्टेप्स काय आहेत? कंठसंकोच श्वास घेताना का श्वास सोडताना? नाही, हा मी तुम्हाला पाहिजे. पहिल्यांदा तुम्ही ज्या वेळेस कंठसंकोच मध्ये काय आहे, ज्यावेळेस तुम्ही श्वास घेतला, पहिल्यांदा एक मी करूनच दाखवतो. करून दाखवतो मी. बरोबर. आता ऍक्च्युली काय त्याच्यामध्ये भरपूर बंध पण लावायचे आहेत, पण बंध अजून मी तुम्हाला काही एक्सप्लेन केले नाही, कारण तुम्ही कन्फ्युज व्हाल म्हणून. त्याच्यामध्ये बंध लावायचे असतात, पण बंध आपण ते ऍडव्हान्स मध्ये आहे, ते नंतर बघू. आता फक्त एक सिंपल प्रोसिजर लक्षात घ्या. मी माझा आता श्वास बाहेर सोडलेला आहे, मी श्वास घेतला, कंठसंकोच, आणि तिथून माझा श्वास आता बाहेर येईल.
कंठ संकोच केल्यानंतर माझा श्वास बाहेर जाईल. आता ज्यावेळेस तुम्ही ऍडव्हान्स प्राणायाम कराल युजेचा, त्यावेळेस तुम्ही कंठ संकोच मध्ये श्वास पण घेता येतो. पण तो ऍडव्हान्स आहे, तुम्हाला त्रास होईल. काय कंठ संकोच ऍडव्हान्स प्राणायाम, ज्यावेळेस तुम्ही ऍडव्हान्स उज्जयी कराल ना, त्यावेळेस कंठ संकोच मध्ये श्वास घेताही येतो आणि सोडताही येतो. पण आता तुम्हाला श्वास सोडायचा आहे कंठ संकोच करून. लक्षात आलंय का? ओके, म्हणजे 2 टाईप झाले थोडक्यात. एक आपला बेसिक आणि दुसरा ऍडव्हान्स. ओके. हा, ऍडव्हान्स आहे. ऍडव्हान्स तर टोटली डिफरंट आहे प्रत्येक प्राणायाम. अच्छा, कळलं. हा, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व बंध लावायचे आहेत. त्या प्राणला तुमचं जी तुम्ही आतमध्ये प्राण घेताय आणि त्याला लॉक करायचं आहे. आणि तो लॉक कशाकरता करायचा आहे की तो प्राण आहे ना तुमच्या या पूर्ण सेल पर्यंत पोहोचला पाहिजे. सेल पर्यंत तुमचा प्राण पोहोचला पाहिजे. आणि जर तुमचा सेल पर्यंत जर प्राण पोहोचला ना, तुमचं शरीर म्हणजे एकदम असं एकदम तेजस्वी होईल. कोणाला तुम्हाला कसलाच काय स्किन नाही, कसला डिसीज नाही, काही नाही. हे त्याचं ब्युटी आहे. ओके. थँक्यू गुरुजी. अजून काही? I think we are on the time now. It's already. चालेल. चला मग आपण फक्त एक शांतीपाठ म्हणून संपवूया. Yeah. हा, शांतीपाठ माझ्या बरोबरच म्हणायचंय सर्वांनी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांती शांती शांती. दोन्ही हात वर करायचे, एक नमन मुद्रा करायची, परत वर यायचं, हात खाली ठेवायचे, एक श्वास घ्यायचा. हात सोडून घ्यायचे आणि उठ डोळ्यांना द्यायची. हरिओम हरिओम. बाय सर, थैंक यू सर. अजून काही क्वेश्चन असतील, एनी क्वेश्चन तो आप कल भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू.